Morning, everyone, and we are going to start the class. And this is our second class, online class I'm talking about, and we are covering the topic "Who moved my cheese?" And in this session, we are going to go ahead with whatever we have studied in our previous class. It will be a session of 30 minutes approximate, and afterwards I'll give you the chance to ask question as well. In between, also as we have discussed, you can raise the hands or you can ask the question. You have the power of unmuting yourself that has been given to you. So if you got to speak, speak one by one. So let us start. I'm going to share the screen now. I hope everybody can see it. Yes, sir. Yes, sir. Fine. So we were on with this particular story, Who Moved My Cheese? And in the previous class, we discussed about the different kind of symbols and metaphors that have been used in the story. And now we are going to go ahead with the things. So this is the novel which we are talking about in the last class, Who Moved My Cheese? I would suggest every student to keep your notebook handy if you have, or if the novel is there with you, keep it handy, and keep your pen and paper also with you so that you could ask or you could write down. You are at your liberty. In between also you can interrupt me if you got any confusion in the topic. So we were on with this. We have discussed all these things in the previous class, that there were two mice, the characters we have discussed. We are not going to go line by line. So we know that there are three parts of this story. आप लोग बीच में इंटरप्ट कर सकते हैं, यस नो बोलते रहिएगा, उससे समझ में आता है कि कंटिन्यूटी बनी हुई है. And there are three parts. That was the first part was talking about a gathering at Chicago, wherein we have discussed that there were several classmates, those who met there in Chicago. Yeah, and it was a class reunion wherein they met and they discussed about their previous life. This sets the stage of the novel in the beginning itself. So they are classmates. So after so many years, they are meeting. So they are expecting some kind of changes in their life, and it is but natural, because if you and I also meet after a couple of months or a couple of years or after several years, there will be a lot of things which has taken a different shape. So they are discussing about their life. So कुल मिलाकर के जो कॉलेज का रीयूनियन था, जो कि किसी भी कॉलेज में या संस्थानों में होता है, उसमें फ्रेंड्स मिले और वो लोग अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में डिस्कस कर रहे थे कि जैसा कि लाइफ उन्होंने सोचा था, हाउ एग्जैक्टली इट इज नाउ, अब कैसा है, क्या वो वैसा ही है एज दे यूज्ड टू थिंक व्हेन दे वर इन देयर स्कूल्स एंड दे यूज्ड टू डिस्कस द थिंग्स विद ईच अदर कि जिंदगी में ऐसा होगा, या कुछ अनएक्सपेक्टेड चेंजेस हो गई हैं, चीजें बदल गई हैं. सो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम वंस दे ब्रोक देयर हेजिटेशन, क्योंकि दोस्त तो थे, लेकिन ग्रेजुअली थोड़ी देर में जब लोग खुल गए तो दे रियलाइज दैट एवरीबडी वाज फेसिंग प्रॉब्लम इन देयर लाइफ. और लोगों ने डिस्कस करना शुरू कर किया कि लोग अलग अलग तरीके से लाइफ में प्रॉब्लम फेस कर रहे थे. किसी की लाइफ भी बहुत स्मूथ नहीं थी, क्योंकि चैलेंजेस तो सबके लाइफ में होते ही हैं. So they started discussing, and one of them started telling the story that really that change was happening in his or her life, and he said that not only this कि change was happening, और इस change से काफी हद तक वो shattered भी हुआ था, वो उससे प्रभावित हुआ था negatively, और अंत में उसने कहा कि ये सारी चीजें चल रही थी unless he heard a story. तो फ्रेंड्स लोगों ने इंसिस्ट किया कि वो कौन सी स्टोरी थी, जो कि उसने बताना शुरू किया कि मैं आपको बताता हूँ. एंड दिस वेरी पार्ट एंड्स, पहला सेक्शन, फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी, सेक्शन ऑफ द स्टोरी एंड्स when he comes to this particular conclusion that he was also facing the challenges, but once he heard the story that changed everything. Then everybody said that what was the story which he has heard of. So then Angela ने पूछा था उससे कि what was the story, and Michael ने कहा कि Michael was the person who was telling the story, और उसने कहा कि the story was Who Moved My Cheese. और उसने कहा कि ग्रुप उस बात पे हंसा, उसने रिस्पॉन्ड किया, पॉजिटिवली लिया, ऑथर का ये कहना चाहते हैं. और उसके बाद उसने कहा, लोगों ने, फ्रेंड्स ने, दैट व्हाई डोंट यू शेयर द स्टोरी विद मी, हमारी लाइफ भी चेंज के थ्रू गुजर रही है, सबकी लाइफ गुजरती है, तो अगर तुम्हारी लाइफ में कोई बदलाव होगा तो हमारी लाइफ में भी तो हो ही सकता है. सो लेट अस टेल द स्टोरी. एंड ही स्टार्टेड टेलिंग द स्टोरी. सो दिस सेट्स द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी, wherein the author has set the platform that how exactly this story came into existence. And now the main story begins. पहला सेक्शन का पॉइंट सब लोगों को क्लियर है? पहले सेक्शन से रिलेटेड कोई कंफ्यूजन, एनी क्वेश्चन व्हिच यू फील लाइक आस्किंग, एनी ऑफ यू? नो सर. नो सर. No, sir. लोग आगे बढ़े, इसमें कोई वर्ड को लेके कोई कंफ्यूजन, किसी को कोई असिस्टेंस? No, sir. नो सर. That is fine. चलिए, now let's move.
and then the story began. Now this is the story जिसके बारे में हमने कहा था कि इस स्टोरी में there are 4 characters which we have already discussed: Hem, Haw, Sniff and Scurry, and they were living in the maze. So the first part of the story says, नाम के हिसाब से सबका characteristics है. What is the meaning of Sniff? Any one of you can tell me? To have a power of smelling anything. Smelling, that is true, that is the literal meaning. But what do you mean by smelling? What does smell term tell us? सर किसी भी सिचुएशन को बहुत जल्दी भांप लेना. आप लेना, एनालाइज कर लेना, ठीक है ना. यानी इससे पहले Yes. कि कोई इंसिडेंट हो जाए आपका कैलकुलेशन अच्छा होता है, आप एनालाइज कर लेते हैं. प्रीटी गुड. व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ स्करी? ये कोई somebody else should tell me. Move fast from the situation it gets. All right. Scurry simply means to act very quickly without wasting time. So किसी भी सिचुएशन में आप एक्ट बहुत क्विकली करते हैं, ठीक है ना. यू आर फास्ट इन रिएक्टिंग. प्रीटी गुड. देन वी गॉट 2 स्मॉल ह्यूमन बीइंग, दे वर हेम एंड हॉ. ठीक है. अब हेम का मतलब क्या होता है? कौन बताएगा? हु विल टेल मी दैट? Sir, who does not want to change? Who does not want to change, because hem denotes literal meaning इसका होता है to remain within the limits, locked हो जाना. तो कोई भी आदमी जो अपने विचार में, थॉट्स में, आइडियाज में अगर अपने आप को वो बांध ले, हम उतना ही जीवन में आगे जा सकते हैं जितना हम सोच सकते हैं. हमारे विचार ही हमको आगे जाने से पहले रोक सकते हैं या आगे लेके जा सकते हैं. तो हेम बंधा हुआ है, लिमिटेड है, सीमित है. ये उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है. नाउ दूसरा कैरेक्टर कौन सा है? हॉ. हाँ. ऑलराइट. और हॉ कौन है? जो कि इंस्टेंटली चेंज हो जाता है क्या? Yes sir. No sir. Learn No, to sir, adapt under in pressure. time. Under Yes, pressure yes. वो जब चेंज होता है. अंडर प्रेशर अंत में वो चेंज हो जाता है, लेकिन वो हेम के जैसा नहीं है. हु डजंट चेंज दैट ही हेम बिलीव्स दैट आई विल डाई बट आई विल नॉट चेंज. हेम के साथ क्या है कि वो स्करी तो नहीं है दैट ही विल चेंज क्विकली, बट हेम के साथ ये बात है कि अगर सिचुएशन गड़बड़ होगी तो चलो मैं चेंज तो हो ही जाऊंगा. नाउ ये स्टोरी में, पूरे कहानी में हेम मेन कैरेक्टर, सॉरी हॉ मेन कैरेक्टर है जो हमको लेसन्स देता चलता है पूरी कहानी में. नाउ दिस स्टोरी is the story that hem is still there, hemmed within the limitations, the which is cheese station C. और हॉ वो है जो जर्नी पे निकला है, और जितने लेसन्स हॉ ने अपनी जर्नी में सीखा है वही लेसन्स नॉवेल में हमें लेसन बन करके मिले हैं. सो द फर्स्ट पार्ट सेज दैट दे वर लिविंग इन द, मैं स्टोरी को बता रहा हूँ आप लोगों को. All these people were living in the maze. हम लोग को मालूम है कि maze denotes a kind of situation. This is world, this is problem, this is challenge, this is real world which is full of unexpected happenings. I hope this term is clear, everyone. Yes sir. All right. So symbolically, author wanted to say that people were living in their own world. आप इसको ये ना मान लें कि सब लोग एक ही जगह में थे या सब लोग चीज खाने के लिए ही दौड़ रहे थे. Here cheese represents something which they wish to have. तो ऑथर ने उसके लिए एकमात्र टर्म यूज किया कि देयर चीज वाज मूव्ड. नाउ द ऑथर, व्हाट ऑथर मेंट कि जिस पर भी उनकी जिंदगी टिकी हुई थी, व्हिच दे यूज्ड टू फील इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी इन ऑर्डर टू सर्वाइव इन द लाइफ, इन ऑर्डर टू लीड अ गुड लाइफ, वो उनका मूव हो गया. आगे की कहानी में इसको क्लियर भी किया गया. सो दे ऑल वर लिविंग इन द मिक्स एंड दे यूज्ड टू गो इन सर्च ऑफ चीज, एंड इवेंचुअली इन द डेज टू कम लोग एफर्ट करते थे, खोजते थे. दे यूज्ड टू, एंड फाइनली they found a cheese, they reached at a place which was cheese station C, wherein a good amount of cheese was there, and they realized कि ये अमाउंट इतना बड़ा था कि उन लोगों ने रियलाइज किया कि अब हमारी लाइफ इस चीज को मिल चुकी है, चीज हमारे गोल हमारे पूरे हो चुके हैं, अब इसके सहारे हमारी पूरी जिंदगी कट जाएगी और अब हमें प्रॉब्लम आने वाली नहीं है. दिस इज द फर्स्ट सेक्शन. एवरीबॉडी, am I clear with my points? Yes sir. Yes sir. Yes, sir. ठीक है. नाउ we have come to this very point. They found their way. ठीक है. Once they found their way, they realized that their goal has been met. उनकी जो गोल थे, जो लक्ष्य था, वो पूरा हो चुका है. All right. लेकिन इसमें कुछ चीजें हैं. Their powerful human beliefs and emotions took over and clouded the way they looked at the things. It made life the maze in the maze
more complicated and challenging for little people. They were him and haw. Now इस पर्टिकुलर पॉइंट को मैं हाईलाइट करना चाहता हूं, जिसको थोड़ा सा समझ लें. मैं पढ़ ही देता हूं, आप लोग देख लेंगे. द माइस, मैं इस पर्टिकुलर पॉइंट पर हूं. All right. The mice, Sniff and Scurry, used a simple trial and error method of finding cheese. They ran down one corridor, and if it proved empty, they turned and ran down another. They remembered the corridors that held no cheese and quickly went into new areas. The author simply wants to say that Sniff and Scurry were in search of the cheese, and they were in the maze, and they simply believed one thing, that was trial and error. यानी उन्हें पता नहीं था कि उनकी कौन सी कोशिश कामयाब होगी. दे सिंपली बिलीव्ड कि अगर हमें कुछ करना है तो हमें ट्राई करना होगा. अगर वो सक्सेसफुल हो गया, वेल एंड फाइन. नहीं हुआ तो मातम नहीं मनाना है. वी हैव टू ट्राई इन अ डिफरेंट वे. सो ट्रायल एंड एरर मेथड को वो लोग फॉलो करते थे. और जैसा कि हम लोगों ने कहा, जैसा कि ऑथर ने पहले एस्टैब्लिश कर दिया है, Sniff would smell out the general direction of the cheese. वो मौके को भांपता था. वो यहाँ ये नहीं है कि चीज की गंध को पहचानता था, वो मौके को भांप लेता था कि ये करना हमारे लिए लाइफ में अच्छा रहेगा. आप लोग भी कुछ ऐसा ही करते हैं. आपके माँ बाप भी जब आपको गाइड करते हैं तो वो इसी तरह से अपने इंस्टिंक्ट को यूज करते हैं, अपने नॉलेज को यूज करते हैं, और वो बोलते हैं कि मैंने अनुभव से सीखा है, तुम भी यही करो. आज नहीं समझ पा रहे हो, फ्यूचर में समझ पाओगे. So Sniff would smell out the general direction of the cheese using his great nose, and Scurry would run ahead. Scurry की क्योंकि क्वालिटी थी, बहुत तेज वो काम करता था, इसलिए जब एक बार उसको बिलीव हो गया कि उसके दोस्त ने ये डायरेक्शन दिखाया है, तो वो बहुत क्विकली एक्शन करता था. Sometimes they got lost, as you might expect, went off in the wrong direction, and often bumped into the wall. लेकिन बहुत तेज चलने के अपने नुकसान भी हैं, क्योंकि आप कंट्रोल नहीं कर पाते. तो कई बार ही यूज्ड टू गेट बम्प्ड इन द वॉल, दीवारों से टकरा जाता था, गलत डायरेक्शन में भी चला जाता था. लेकिन जब ट्रायल एंड एरर है तो इसमें सबसे पहले आपको ट्राई करना होता है. एरर होता है, आप दोबारा ट्राई करते हैं. इसकी सबसे अच्छी बात है कि डिससेटिस्फैक्शन और फेलियर की फीलिंग आपके ऊपर हावी नहीं होती है. अगर ऐसा होता तो साइंटिस्ट लोग एक्सपेरिमेंट ही नहीं करते, क्योंकि उन्हें सबसे ज्यादा ट्रायल एंड एरर करना पड़ता है. और जब तक एक्सपेरिमेंट सफल नहीं होता, तब तक वो केवल फेलियर को ही एक्सपीरियंस करते हैं. लेकिन like the mice, the two little people, hem and haw, also use their ability to think and learn from the past experience. उनके पास ये एबिलिटी थी कि वो पास्ट एक्सपीरियंस को लर्न कर सकते थे, सोच सकते थे. However, they relied on their complex brains. कॉम्प्लेक्स ब्रेन, चूहों से तो आदमी का दिमाग ज्यादा विकसित होता ही है, उन पर उसको भरोसा था. They relied on their complex brains to develop more sophisticated ways of finding cheese. Sometimes they did well, but at other times their powerful human beliefs and emotions took over and clouded the way they looked at things. It made life in the maze more complicated and challenging. So the author says उनके पास एक स्मार्ट ब्रेन था, एनालिटिक ब्रेन था, तेज ब्रेन था. ह्यूमन ब्रेन्स आर बेटर देन अदर ब्रेन्स, ये सबसे शार्प है, इसमें कोई डाउट नहीं है. बट मेनी अ टाइम्स व्हाट हैपेंस दैट ऑल दीज थिंग्स आर क्लाउडेड विद आवर बाय ह्यूमन बिलीव्स. हमारे जो सोच हैं और इमोशंस है वो टुक ओवर कर लेता है, और हम जैसा, यही तो वजह है कि कुछ लोग जिंदगी में हार नहीं मानते हैं और कुछ लोग हार मान लेते हैं. नो डिफीट इज फाइनल अनटिल और अनलेस यू स्टॉप ट्राइंग. कोई भी आपकी हार अंतिम नहीं हो सकती है जब तक आप उसको अंतिम नहीं बना दें. और आप अंतिम कैसे बनाते हैं? आप ट्राई करना छोड़ देते हैं. तो यहां पर क्या था कि कई केसेस में उनके बिलीव्स उनके ऊपर छा जाते थे और वो मान लेते थे. कई एक लोग ऐसे होते हैं, लॉट ऑफ पीपल आर देयर इन द लाइफ, जो मान लेते हैं मुझसे तो ये काम होगा नहीं. दो तरह के लोग हैं. एक वो जो मान लेते हैं कि मुझसे ये काम होगा, उनका अप्रोच और तरीका अलग होता है, और अगर उनको बाधा मिलती है तो कहते हैं कि नहीं कैसे होगा, अभी करके बताता हूँ. कुछ ऐसे लोग होते हैं जो मानते हैं मुझसे तो नहीं होगा, और अगर उनको कोई बोले तो वो कहते हैं कि कैसे होगा, मुझसे तो नहीं होगा ना. और वहीं तीसरे लोग होते हैं जिन्होंने किया नहीं होता है, लेकिन जब उनको करना पड़ता है देन दे हैव द फीलिंग कि मैं इसको कर लूंगा. आता नहीं है लेकिन सीख लूंगा. तीनों तरह के लोगों का अप्रोच उनके बिलीफ से निकला है, और अकॉर्डिंग टू देयर बिलीव्स देयर एक्शंस आर ओरिएंटेड एंड गाइडेड. आई होप आई एम क्लियर विद माय पॉइंट्स. Yes, sir. सर यस या सोफिस्टिकेटेड मेथड्स का मतलब सर क्या होगा? सोफिस्टिकेटेड का मतलब होता है एडवांस लेवल, सोफिस्टिकेटेड तरीका. कुछ लोगों की बातचीत का तरीका काफी सोफिस्टिकेटेड, मतलब संभ्रांत होता है, तरीके का होता है, यानी एक स्मार्ट वे, आप ऐसा कह सकते हैं.
सोफिस्टिकेटेड वे, किसी काम को करने का तरीका। फॉर एग्जाम्पल, एक तो मुझे कोई काम अगर करना है तो मैं उसमें केवल अपने ताकत पे भरोसा करूं कि मैं ताकत से ये काम कर लूंगा। दूसरा हो सकता है कि मैं कोई, आप लोग मैं उसे स्मार्टली करूं। आप लोगों ने ये टर्म सुना है ना कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन स्मार्ट वर्कर एंड हार्ड वर्कर। यस सर। ये जो स्मार्ट वर्कर होते हैं सोफिस्टिकेटेड लोग हैं, ये अपने एबिलिटी के साथ अपने क्वालिटी को भी इस्तेमाल करते हैं और उतने ही अमाउंट के वर्क को ये स्मार्टली कर लेते हैं, लेकिन एफर्ट इनका कम लगता है। तो सोफिस्टिकेटेड वे का मतलब होता है कि अच्छे तरीके उन्होंने निकाल लिए किसी काम को करने के। इज दैट क्लियर? आगे बढ़े हम लोग। यस सर। Yes, sir. ठीक है, ओके। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, Sniff, Scurry, Hem and Haw all discovered in their own way what they were looking for. ऑथर ने ऑलरेडी बोला what they were looking for, यानी चीज को उसने लोगों के मेटाफर पे डाल दिया कि जो भी वो खोजना चाह रहे थे, चाहे उनका तरीका सोफिस्टिकेटेड ब्रेन का हो, चाहे वो रफ ब्रेन का हो, रॉ ब्रेन। Sniff, Scurry, Hem and Haw all discovered what they wanted in their life. सफलता तो लोगों ने पा ही ली थी। खुश तो दुनिया में हर आदमी हो जाता है, सफल से सफल, और मेहनती लोग भी, असफल लोग भी खुश तो हो ही जाते हैं, कहीं ना कहीं जिंदगी में पहुंच ही जाते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि जहां पहुंचे हैं वही उनकी मंजिल थी या उससे और ज्यादा अच्छे जगह पे वो जा सकते थे, बेहतर जगह पे जा सकते थे। एनीवे, नाउ दिस इज द फर्स्ट सेक्शन। Every morning they used to come there. ये एक रूटीन सेटअप था। Now the important point is which we need to discuss is, जब उनको चीज मिल गया, which was a big pile, they all relied on the चीज। उन लोगों ने चीज को पे रिलाई कर लिया, उन्होंने एंजॉय करना शुरू किया। बहुत ज्यादा वक्त तो नहीं हुआ, बट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम they started following a certain routine, और उसके बाद उस रूटीन को उन्होंने फिक्स बना लिया कि अब तो यही काम करना है। ऑलराइट, लेकिन स्निफ और स्करी के साथ कुछ और बात हुई जिसको यहाँ हाईलाइट करना मैं चाहूंगा, और आप लोग अपनी कॉपी में भी हाईलाइट कर लें। इस लाइन को देखें जो आपके स्क्रीन पर है। स्निफ एंड स्करी कंटिन्यू टू वेक अर्ली ईच डे एंड रेस थ्रू द मेज, ऑलवेज फॉलोइंग द सेम रूटीन। यहाँ पे कुछ सर्टेन पॉइंट है जिसको ध्यान देना है, और वो सर्टेन पॉइंट है, और वो सर्टेन पॉइंट ये है। मैं इसको हटा रहा हूं, थोड़ा क्लियर नहीं हो रहा है, इसको मैं हटा रहा हूं। और वो सर्टेन पॉइंट है, स्निफ एंड स्करी कंटिन्यू टू वेक अर्ली। इस पॉइंट पे ध्यान दें। वी ऑल वेक अप, बट दे कंटिन्यू टू वेक अर्ली एवरी डे एंड रेस थ्रू द मेज। ध्यान दीजिए, यहाँ पर रेस वर्ड को इस्तेमाल किया गया। ऑलवेज फॉलोइंग द सेम रूटीन। इतना बड़ा चीज मिल जाने के बाद भी उनको पूरा स्टॉक मिल गया था जिसपे वो लोग निश्चिंत थे कि मेरी जिंदगी चल जाएगी। डिस्पाइट ऑफ दैट, चीज मिल गया, मेज में उनको रास्ता क्लियर हो गया कि मुझे किन रास्तों से जाना है और चीज तक पहुंचना है। और जब मेज में रास्ते आपको क्लियर हो जाते हैं, भूल भुलैया का रास्ता आपको पता होता है, तो फिर वो मेज नहीं बनता है, फिर वो जर्नी बन जाती है। अग्री और डिसअग्री? अग्री और डिसअग्री? एग्री सर। एग्री सर। Agree, sir. करेक्ट। मैं आपको एक भूल भुलैया दूं, मेज दूं, उसका रास्ता आपको याद आ जाए कि किस रास्ते से चल करके हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो अब वो मेज नहीं रहा, उसकी उलझन खत्म हो गई। एनीवेज, तो ये लोग का क्या पॉइंट था कि डिस्पाइट दे फाउंड व्हाट दे वांटेड इन देयर लाइफ, चीज मिल गया, डिस्पाइट ऑफ दैट दे यूज्ड टू वेक अप अर्ली ईच डे। उन्होंने उस रूटीन को नहीं तोड़ा। वो हर रोज जल्दी उठते थे और उस मेज में जाने के लिए, मंजिल तक पहुंचने के लिए रेस करते थे, आपस में प्रतियोगिता करते थे कि तुम पहले पहुंचोगे यानी या मैं पहले पहुंचूंगा। एक कंपटीशन की भावना इनमें थी। इसको अभी जब हम कंपेयर करेंगे हेम और हॉ से, तब हम समझ पाएंगे कि किस माइंडसेट को ये शो कर रहा है। इतना ही नहीं है, when they arrived at their destination, the mice took off their running shoes and tied them together and hung them around their necks so that they could get to them quickly whenever they needed to. पहुंचने के बाद वो लोग अपने जूतों को खोलते थे, उनको आपस में बांधते थे और गले में डाल लेते थे, so that जब भी जरूरत पड़े तब वो उसको पा सकें। अब यहाँ पे थोड़ा सा we need to discuss this very point. चीज मिल चुका था, जगह मालूम था, फिर भी इसमें फर्स्करी दौड़ के जाते थे, जल्दी उठते थे, दौड़ के जाते थे, और जाने के बाद अपने जूतों को खोल के हैंडी रख लेते थे, क्योंकि अब तो मुझे खाना है, लेकिन इन जूतों की जरूरत दोबारा कभी पड़ सकती है। It shows their alertness, it shows their alert state of mind. ये बताता है कि उनका माइंड कितना अलर्ट था।
और ये बताता है कि वो किसी भी इवेंचुअलिटी के लिए तैयार थे। यस और नो? Yes, sir. कब तैयार थे? जब उनको उतना बड़ा चीज का पाइल मिल चुका था। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. यानी ये एक समझदारी को शो करता है। तुम्हारे पास बहुत पैसे आ जाएं, फिर भी तुम तैयार हो कि कभी कोई इवेंचुअलिटी हो जाएगी तो मुझे क्या करना है। तो इसे हमको ध्यान रखना है। अब लेकिन इस पर्टिकुलर चीज को हम दूसरे नजरिए से देखते हैं और उसके बाद ही दे यूज्ड टू एंजॉय द चीज। लेकिन अब इस पर्टिकुलर में इसी में हम लोग हेम और हॉ के अप्रोच को देखते हैं। इन द बिगनिंग हेम एंड हॉ आल्सो रेस टुवर्ड्स सी स्टेशन सी। शुरुआत में ये भी वही काम करते थे। यहाँ सी को कैपिटल सी से डिनोट किया गया है और ये चीज स्टेशन का नाम है। उनको ने चीज स्टेशन का नाम सी रखा है। ये अल्फाबेट नहीं, ये नाम है। जैसे आप लोग मानते हैं ना कि लेट द प्रिंसिपल इज इक्वल टू ए और एक्स रुपीस, इस तरीके से उसने सी माना। Yes, sir. Yes, sir. They enjoyed the tasty new morsels that awaited them, but after a while a different routine set in for the little people. शुरुआत में तो वो भी इसको फॉलो करते थे, यानी शुरुआत में उनका भी माइंडसेट यही था that we should be ready, we should be ready to take on the challenge, we should be ready for eventualities. But over a period of time, कुछ दिनों के बाद एक different routine उन्होंने लाइफ में फॉलो करना शुरू कर दिया। What does it show? क्या वो different routine? पहले ये समझते हैं। Him and Haw awoke each day a little later. ये पहली बात, अगर आपके पास मॉड्यूल है, बुक है तो अंडरलाइन कर लें। They awoke each day little later. देर से उठते थे। अब सुबह जल्दी उठने और देर से उठने में क्या फर्क है? कंफर्ट जोन का मामला है। They were becoming comfortable. They became very comfortable. कि देर से भी उठने से काम हो ही जाएगा, जल्दी उठने की क्या जरूरत है? Dressed a little slower. जो फास्ट वो लोग करते थे, ये स्लोअर कर रहे हैं। ये दोनों लोगों के माइंडसेट में देख लें। So students, I want to give you a message to you that your actions are the results of your thinking. Your actions are the results of your mindset. आप जिस तरह का माइंडसेट रखते हैं, उसी तरह की चीजें आपके एक्शन में रिफ्लेक्ट होनी शुरू हो जाती है और वो यहाँ पर हो रहा है। They were becoming comfortable. They woke up late. All right. देर से उठते थे. They dressed a little slower and walked to the station C. अब दौड़ की बात नहीं रही, रेस की बात नहीं रही। They used to walk. ये कंफर्टेबल है। मैं वॉक कब करता हूँ? जब मुझे मंजिल पर पहुंचने की कोई जल्दीबाजी नहीं होती है और जब मुझे मालूम होता है कि जल्दी पहुंच जाना है ताकि मैं जल्दी से जल्दी उस रिजल्ट को अचीव कर लूं, तो मैं क्विक होता हूँ, फास्ट होता हूँ। लेकिन उसके पीछे उनका लॉजिक था। आफ्टर ऑल दे न्यू वेयर द चीज वाज नाउ एंड हाउ टू गेट देयर। इनके पास ब्रेन था, कॉम्प्लिकेटेड ब्रेन। तो दे थॉट हमें मालूम है कि चीज कहाँ पर है। सुबह में जल्दी जाऊंगा तो भी वहीं पहुंचूंगा, देर से जाऊंगा तो भी वहीं पहुंचूंगा, दौड़ के जाऊंगा तो भी वहीं पहुंचूंगा, धीरे जाऊंगा तो भी वहीं पहुंचूंगा। तो क्या जरूरत है? ये इनके कॉम्प्लेक्स ब्रेन ने इस बिलीफ को डेवलप किया कि क्या फर्क पड़ता है, देखो मैं देर से भी आता हूँ तो भी मुझे मिलता है, चल के भी आता हूँ तो भी मुझे मिलता है, क्या जरूरत है परेशान होने की। ये कंफर्ट जोन के बारे में बताता है। एंड दिस क्लियरली स्टेट्स द डिफरेंट काइंड ऑफ माइंडसेट both all these people were having. They had no idea where the cheese came from or who put it there. They just assumed it would be there. अब तक का जो मामला है, इसमें ये अज्यूम कर रहे हैं कि किसने रख दिया और कहां से आया। ये सवाल जानना जरूरी नहीं। हालांकि ये सवाल उस वक्त उठा सकते थे कि who put the cheese here, ऐसा उन्होंने सोचा नहीं। Who has kept it here, ये सोचा नहीं। For how long, ये सोचा नहीं। They simply assume कि ये तो यहाँ है और यहीं रहेगा और ये मुझसे कोई नहीं छीनेगा। Everybody, am I clear the points? Yes, sir. अब मैं कुछ क्वेश्चंस बोल रहा हूँ, आप लोग उसको कॉपी में थोड़ा लिख लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा और इससे थोड़ा हमको समझने में, इसका आंसर्स मुझे कम्युनिकेशन के वे में ही चाहिए। और आज की क्लास में या अगली क्लास में मैं इसका, आप क्वेश्चन को रिस्पॉन्ड करेंगे कि सर ये क्वेश्चन था, इसका आंसर मैंने ये सोचा है, तो थोड़ा डिस्कस कर लेंगे तो हमारा काम आराम से हो जाएगा। मैं कुछ क्वेश्चंस लिखा रहा हूँ, लिखिए। ये हमारे आपस के डिस्कशन के लिए, इससे हमें स्टोरी को समझने में मदद मिलेगी। तो पहला मैं बोल रहा हूँ, व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट चेंज। ये मैं तुम लोगों से डायरेक्ट क्वेश्चन कर रहा हूँ। व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट चेंज, दैट इज द फर्स्ट क्वेश्चन। Second question, how comfortable please are you? repeat the first question. कोई दूसरा बच्चा क्वेश्चन को रिपीट करे। What is
opinion about the Your opinion about What is your opinion change? about What change? is your opinion about change? तुम लोग भी आपस में एक दूसरे से बात कर सकते हो, प्लेटफॉर्म ओपन है। मेरे को लग रहा है सब बच्चे की बात सब लोग सुन पा रहे हैं। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, so what is your opinion about change? ये पहला क्वेश्चन था। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है? What was the second question? sir, सेकंड क्वेश्चन क्या था? आप नहीं बोले तो सर अभी सर अभी आप बोले बोला नहीं सर। अब बोले। मैं बोल रहा था, हाउ कंफर्टेबल आर यू विद द चेंज? हाउ कंफर्टेबल आर यू विद द चेंज? अगर आज तुम्हारे जीवन में कोई चेंज हो जाए, बदलाव हो जाए, तो तुम कितने कंफर्टेबल हो? ना यहाँ पर ध्यान रखना है, आई एम सेइंग द वर्ड चेंज. Change can be positive also and change can be negative also. What do you mean by positive? Positive change means the change which you are ready for, which you welcome, which you wish to happen. For example, आज आपको लॉटरी मिल जाए, लाखों करोड़ों डॉलर्स मिल जाए, तो इस चेंज से आपको कोई तकलीफ? no sir. No, sir. इस चेंज को सब वेलकम करेंगे, लेकिन इसका उल्टा भी होता है, और कुछ ऐसे भी चेंजेस होते हैं which you don't welcome, जिनको आप वेलकम नहीं करते हैं। यानी उन चेंजेस को आप क्या कॉमनली नाम देते हैं? प्रॉब्लम, ट्रबल। क्या नाम देते हैं? Problem. ट्रबल। जैसे एक चेंज आपके लाइफ में हो जाए, आज आपको जॉब मिल जाए, इसको आप वेलकम करेंगे या नहीं करेंगे? यस सर। वेलकम जरूर करेंगे। करेंगे। अगर जॉब में है तो प्रमोशन मिल जाए, इसको भी वेलकम करेंगे। लेकिन Yes, कुछ sir. चेंजेस Yes, sir. जिसको आप नहीं चाहते हैं आपकी जिंदगी में हो, गॉड फॉरबिड, भगवान न करे कभी आप जॉब में हो और आपका जॉब छिन जाए, ये भी तो चेंज है। Yes, sir. क्या नाम देते हैं कि ये तो प्रॉब्लम है Yes, सर। sir. ठीक है, तो आपका चेंज को लेके क्या ओपिनियन है? और लाइफ में चेंज हमेशा पॉजिटिव या नेगेटिव ही नहीं रहेगा। एक तीसरा क्वेश्चन भी आप लोग लिखें। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ चेंजेस डू यू what kind of changes do you find? What kind of changes do you find in the behavior of, what kind of Changes what do kind you find? in the mindset of what kind of changes do you find in what is the question? Please repeat. मैं screen off कर रहा था। What kind of What kind changes do you find Changes? in the mindset of The mindset of hem dash haw and sniff scurry, sniff dash scurry। हमने यहाँ पे दो टीम मान लिया है, एक टीम है हेम और हॉ का, और दूसरा टीम अभी हमने मान लिया स्निफ और स्करी का। बाद में हम इन चारों को अलग कर देंगे, लेकिन ब्रॉडली भी अगर हम देखेंगे, देन वी कैन सी दैट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द माइंडसेट ऑफ दीज टू ग्रुप्स। दोनों ग्रुप के बीच में माइंडसेट में चेंज है। मुझे लग रहा है थोड़ी देर में ये खत्म हो जाएगा, टाइम का कुछ मुझे नोटिफिकेशन आया है। तो आपको ये मानना है कि हेम और हॉ मेंटालिटी के लोग ब्रॉडली क्या सोचते हैं, और दूसरा स्निफ और स्करी मेंटालिटी के लोग ब्रॉडली क्या सोचते हैं। ये कभी भी खत्म हो जाएगा तो हमारी क्लास आज खत्म हो जाएगी। अगली क्लासेस में हम इन क्वेश्चंस पे डिस्कस करेंगे, लेकिन अब तक का जो टाइम है, आप लोग कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, या मैंने जो अभी 3 क्वेश्चन दिया है इनसे रिलेटेड कुछ पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। आस्क मी नाउ। no sir. जितेंद्र, तुमने स्क्रीनशॉट ले लिया है? Yes, sir. ठीक है, नो नीड। Sir, question number second. How comfortable are you with the change? Now this is a question directly to you, that are you comfortable with the change? अगर तुम्हारी लाइफ में कोई बदलाव होगा तो क्या तुम उससे कंफर्टेबल हो? कितने कंफर्टेबल हो? कितना कंफर्ट तुम चाहते हो? क्या तुम उस बदलाव को पॉजिटिवली एक्सेप्ट करोगे? या जैसे तुम्हारी लाइफ में एक बदलाव हुआ, इससे पहले तुम क्लास में कॉलेज में आके पढ़ते थे, और एक नेगेटिव चेंज हो गया कि भाई अभी लॉकडाउन है तो चलो हम ऑनलाइन पढ़ाई कर लेते हैं। Am I clear the points? Yes, sir. इस तरह से और भी कुछ चेंजेस हो सकते हैं। कल तक हो सकता है यू माइट बी हैविंग अ मोटरसाइकिल और स्कूटी,
फॉर योर ओन फॉर योर कंफर्ट, और हो सकता है कि अब वो मोटरसाइकिल या स्कूटी न रही हो, नेगेटिव बदलाव आ जाए। तो अगर तुम्हारी लाइफ में पॉजिटिव या नेगेटिव सिचुएशन आती है, बदलाव आती है, तो तुम इसे कैसे रिस्पॉन्ड करते हो, दैट इज द क्वेश्चन। चेंज को लेके तुम कंफर्टेबल हो या तुम चाहते हो जो चीजें जैसी है, जिस कंडीशन में है वैसी ही चलती रहे? व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट इट? दैट इज द सेकंड क्वेश्चन। Okay. क्लियर है नाउ? Yes, sir. Clear. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, फाइन। अगली क्लास में हम लोग इस टॉपिक को आगे बढ़ेंगे, और अब तक जहां तक हम लोग पहुंच गए, क्योंकि अब हम लोग आ जाएंगे लेसन्स पर, मैं इसी तरीके से टॉपिक को एक्सप्लेन करूंगा, राइटिंग्स ऑन द वॉल्स को बताऊंगा, चीज पर जो लेसन्स लिखे गए उनको डिस्कस करूंगा। और मैं चाहता हूं कि तुम लोग अपनी कॉपी में कुछ लिख करके भी रखो, ताकि तुम्हारे कोई क्वेश्चंस हो तो मैं उसको रिस्पॉन्ड कर सकूं इसी सेशन में। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है बाबू, बढ़िया से रहो घर पर, एंड स्टे सेफ, करके बिल्कुल बाहर मत निकलो, पढ़ाई करो, अपने पूरे टाइम को प्रोडक्टिव चीजों में इस्तेमाल करो। ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, थैंक यू Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, Thank sir. you, sir. क्लोज कर सकते हैं। थैंक यू।